So hello to all my dear students. So we are back with the new video and the new concept, the interesting part of the national income, that how you will going to calculate your national income. So first of all, as we have discussed in the first video, while we have started with the national income, the circular flow. The circular flow of our income will going to generate or will going to help us to calculate national income. Okay. So there are different ways to calculate national income. You can see on the screen that there are three methods. The first is value added method, income method and expenditure method. So in this, first of all, we are going to start with the value added method. What does value added method tell us, or what does it mean, or how the calculation part will going to be done in value added method? So let's understand first of all. See, in value added, you will going to add a value. How you will going to add a value? It means like value addition by each producing enterprises in the economy. Means there are industries, there are manufacturers, so they will going to produce goods and services, and the producer is the one who will going to add his value. Like take an example, he will going to add the value according to the work he will going to do. Okay, so you can, let's understand with a very basic example. एक फार्मर होता है, ठीक है, वो सबसे पहले बीज डालता है गेहूँ उगाने के लिए, उसके बाद वो 3-4 महीने उसको अच्छे से काम करता है, उगाता है, उगाने के बाद वो हार्वेस्ट करता है और आफ्टर दैट वो मार्केट में जाकर उसको सेल करता है. जब उसको सेल करता है तो एक तो होती है उसको जो पता है कि उसकी कितनी कॉस्ट लगी है फर्टिलाइज़र्स में, केमिकल्स में, इरिगेशन में, सीड्स में, ये सब चीज़ों में. और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी एक वैल्यू ऐड करता है. क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है, उसको बनाया है, उसमें अपनी मेहनत डाली है, सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो उस चीज़ के लिए क्या करेगा, अपनी एक वैल्यू ऐड करेगा. ठीक है. सो यहीं से एक वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इफ़ व्हेन अ प्रोड्यूसर, व्हेन ही विल गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, देन दैट पर्सन विल गोइंग टू ऐड हिज वैल्यू. आगे चलते हैं. अब वो जब वो जाता है और मार्केट में बेच कर आता है तो डायरेक्टली कंज्यूमर तो खरीदता नहीं है. कौन खरीदता है? पहले कौन खरीदता है? जो फ्लोर मिल वाला होता है ना, जो मतलब लाइक उस गेहूं को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, आटे के अंदर. वही हम कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली गेहूं तो कंज्यूम कर नहीं सकते. सो अब यहाँ पे आटा जो है, वहाँ पे मशीन से वो चीज़ें हुई होंगी, तो उस मैन्युफैक्चरर जो होगा वो क्या करेगा, अब अपनी वैल्यू ऐड करेगा, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो पुट सम ऑफ द सर्विसेज इनटू इट, सो ही विल ऑल्सो गोइंग टू ऐड हिज वैल्यू. देन वो क्या करेगा, होलसेल मार्केट में बेच के आएगा, फिर होलसेलर अपनी वैल्यू ऐड करेगा, एंड लाइक दिस the value addition concept get started. Okay, one more thing, we can also call value added method as an industrial origin method. Okay, or even we can say it as net output method. Clear? So the question can come up that value added method is also known as, so you can write any of the answer, industrial origin method or net output method. Okay, so while we are going to talk about value addition, so how the value addition method will going to help us to calculate national income, because in this whatever the contribution from the producing units, contribution of all producing units, means the manufacturers who are going to produce the goods and services, all producing units, to the production, that whatever the production they are doing in the domestic territory. Again I am repeating what it is, in the domestic territory of the country during an accounting year. So I hope the things got clear, that we are going to include those producing units which will going to be produce in our domestic territory of the country during an accounting year. During an accounting year. Clear? Okay. So market value of GDP is represented by GDP at MP, that we have already discussed. The market value, gross domestic product at market price, whereas our national income is represented by NNP at FC. Okay, now I hope that you remember that why national income will going to consider that factor cost. Why? Because
we are not going to consider market price because market price is inclusive of taxes, and in national income we cannot include taxes because taxes are a transfer income, and transfer income is not included in national income. I hope you remember. So let's move further and let's understand the first concept of value addition method, that is value added. So value added means the amount by which the value of an article can be increased. Value of an article or a good or a product article is increased not at one stage, at every stage. Whenever somebody or the other will going to put their services into it, they will going to increase the value because they want to earn the profit. So is increased at every stage of its production. Clear? Simple to understand. The amount by which the value of an article is increased at every stage of its production. Clear? So how the value addition or value added can be calculated? So there is a very simple formula. Value of output is given to you, that will get deducted from intermediate cost. Now the question comes up in student mind that what this value of output and what this intermediate cost. So let's understand value of output. It is quite simple. Value of output means is equivalent to sales, that how much sales you are having, and how sales can be achieved when price of a commodity will get multiplied how many commodities you have sold it out in the market. That will going to tell your sales, and that sales is equivalent to value of output. So we can write it down in the definition as well. It refer to MRP, means market value, okay, of goods and services produced. Who will going to produce? A producer, produced by producer or a firm, by firm, during an accounting year. I hope the concept got clear of value of output, that it is equivalent to sale, and sales can be calculated on the basis of price into quantity. And even in fact we can write it down in definition. It refer to MRP of goods and services produced by firm during an accounting year. क्लियर? इस MRP से हम बता देते हैं कि हमारी कितनी सेल्स हुई है. ठीक है, एक प्रोडक्ट बिका है, 10 प्रोडक्ट बिके हैं. That can be calculated and will going to tell us our total sale, and that total sales is equal to value of output. Clear? Now there may be a possibility that whatever the production we have done, that it is not necessarily the whole product will going to get a sale in the market. It may be a possibility. या सपोज करो ये पेन है, ठीक है. अब ये पेन जब प्रोड्यूस हुआ, इसकी 10 यूनिट्स बनी थी, तो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने इसको परचेज़ किया. अब मार्केट को कैसे एग्जामिन करता है प्रोड्यूसर? वो सोचता है इस प्रोडक्ट की पहले भी डिमांड आई थी, अब भी आएगी, ठीक है. तो अब वो क्या करेगा, इसकी हो सकता है 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दे, ठीक है. लेकिन क्या हुआ, मार्केट में पूरी बिकी नहीं, सिर्फ 12 बिकी. क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये वाला पेन भी खरीद रहे थे, ठीक है. तो कुछ लोगों ने ये वाला पेन खरीद लिया, तो इस कारण से इसकी सेल क्या हो गई, कम हो गई. तो अब क्या हो सकता है, if some output will going to remain unsold, output remain unsold, quite genuine हो सकता है. तो यार कि मैंने लाइक हो सकता है जो हमने सोचा वो बिक जाए, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा उतना ही बिके जितना हम सोच रहे हैं या फिर जितना हमने प्रोडक्शन किया है. हो सकता है XYZ रीजंस हो सकते हैं, लोगों ने मतलब परचेज ना किया हो, कुछ और उनकी डिमांड चेंज हो गई हो, ठीक है. सो व्हाट दैट विल गोइंग टू, उस प्रोडक्शन से हम लोग क्या करने वाले हैं, इट इज़ एडेड टू दी फर्म इन्वेंट्री. नाउ अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो बच गया है, जो 3 पेन बच गए हैं उसको फेंक देंगे अपन, नहीं ना. तो उसको हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर. इन्वेंट्री स्टॉक मतलब एक स्टॉक क्या होता है, जहाँ पे हम अपनी चीज़ें सेव कर लेते हैं या फिर इसको रख लेते हैं कि हाँ इसको हम आने वाले टाइम में इसको बेच देंगे, सिंपल. तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर ऐड कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर ऐड कर लेते हैं. क्लियर? और सिंपल तरीके से समझा जाए, जो आपके लिए काफ़ी फेमिलियर टर्म है, कि इट इज़ known as
चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक तो आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ लिया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब अगर सपोज करो सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने लिखा था इज इक्वल टू सेल्स, समझ में आया था। अब कुछ माल ऐसा है जो नहीं बिकता, तो वो सेल्स के साथ क्या होगा, चेंज इन स्टॉक भी, जो इन्वेंटरी स्टॉक है वो भी क्या ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट बता देता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकलेगा कैसे, कैलकुलेट कैसे होगा, तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रैंगल्स, इसको डेल्टा ही बोलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। चेंज इन स्टॉक इज कैलकुलेटेड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई होप ये अकाउंटेंसी पढ़ रखा होगा आपने, तो मेरे को इतना डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कि मतलब लाइक ईयर एंड में कितना स्टॉक बचा है, जैसे 100 है और ओपनिंग कितना है 150, तो अब 100 मतलब लाइक 100 माइनस 150 करूँगा तो 50 का स्टॉक अभी मेरे पास बचा है, जो चेंज इन स्टॉक हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर सपोज करो ये सेल्स हुई है 1000 और चेंज इन स्टॉक है 50, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल कितना हो जाएगा 1050। क्लियर है, बस समझ में आ गई। तो अभी हमने सबसे पहले वैल्यू एडेड समझा था, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट में पहला पार्ट समझा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स के बराबर, और मे भी पॉसिबिलिटी सेल्स पूरी ना हो तो चेंज इन स्टॉक की तरह ऐड हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बोली थी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है, इसको समझते हैं आप। इंटरमीडिएट कॉस्ट, नाउ व्हाट डज इट, intermediate cost, it refer to value of non-factor inputs. It is a value of non-factor inputs, or we can say all input other than factor input. मतलब लाइक कि एक होते हैं हमारे फैक्टर इनपुट या फिर फैक्टर सर्विसेज, अगर याद हो तो आपको कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारी क्या है, फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर सर्विसेज है। और एक होते हैं हमारे नॉन फैक्टर इनपुट। देखो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इनपुट भी इंपॉर्टेंट है और नॉन फैक्टर इनपुट भी इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट कैटेगराइज दैट कि हाँ फैक्टर इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन फैक्टर इनपुट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सपोज करो गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कोई काम की है, और अगर वहीं पे पेट्रोल है गाड़ी नहीं है तो वो भी कोई काम का नहीं है। तो बोथ थिंग इंटर रिलेटेड है। अगर फैक्टर इनपुट है तो प्रोडक्शन ईजी हो जाएगा, लेकिन नॉन फैक्टर इनपुट होना भी ज़रूरी है। सर आपने इतना तो बता दी, नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट है क्या ये तो बताओ। नॉन फैक्टर इनपुट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू ना रॉ मटेरियल। नाउ सपोज इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ रॉ मटेरियल विथ योरसेल्फ, देन व्हाट you will going to do, what the production you will going to do. So it is very necessary to have non-factor input as well. Okay, so it include value of raw material used in the process of production. This raw material will going to help us to do the process of production. What it will going to help us to do, process of production. We are able to produce goods and services on the basis of the raw material which we are going to have. So this is about our intermediate cost. This will going to include the intermediate cost, that what are the raw materials we are going to put in to produce the final goods and services. I hope these three things got clear to you. Value added can be calculated on the basis of value of output minus intermediate cost. I have explained you about value of output as well as intermediate cost. Clear? So now let's recall some of the things related to the previous video. Now take an example. Okay, I would like to tell you one more thing over here, that while calculating national income through value added method, the answer will going to tell us about GDP at MP, that is gross domestic product at market price. Our calculation will going to give an answer of GDP at MP, or I can say GVA at MP. Both the things are same. Clear? Gross domestic product at market price, or I can say gross value added at market price. Clear? Now take an example. From here I have to calculate my national income, and national income represented by NNP at FC. So first of all, if I am GDP at MP and to reach NNP at FC, what I will going to do, from gross to net, the concept again, recall those concepts, सूरज भगवान की जय वाला concept. ग्रॉस से नेट पे जा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन क्या करूँगा, माइनस करूँगा। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा क्या आंसर आएगा, NDP एट MP। अब मेरे को कहाँ जाना है, डोमेस्टिक और यहाँ पे नेशनल, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा, NDP एट MP पे हूँ मैं, तो मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहा हूँ, तो मैं NFIA को ऐड करूँगा। आई होप NFIA पता होगा क्या होता है, NNP एट MP पे आ जाऊँगा मैं।
NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे कैलकुलेट होती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। याद आ रहा है? लास्ट, अब मैं NNP एट MP पे आ चुका हूँ। अब मेरे को कहाँ पहुँचना है? NNP एट FC पे। NNP ये तो सही, मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहा हूँ, तो NIT का क्या करूँगा? माइनस कर दूँगा, मतलब T टैक्सेस माइनस सब्सिडीज विल गोइंग टू टेल मी अबाउट NIT। क्लियर है? आई होप याद आ गया होगा सब कुछ। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन होगी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने में, या फिर GDP एट MP, दैट इज नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन मेथड. Now there are few things while doing the question, the adjustment will going to come, and on that basis only you have to calculate your national income. So there are some of the precautions, or there are some of the things which you have to take care of. And what are the precautions while calculating national income through value added method? So let's understand precautions. So the precaution number 1 is sale and purchase of second hand goods is not included. Means sale and purchase of second hand goods are not included. Where it will not be included? Are not included while calculating national income through value added method. Sir, why? Because they were already accounted for during the year when they have been sold for the first time. At that point of time only we have considered their value addition. Okay, suppose करो जब आप अपना मोबाइल खरीदने गए थे, ठीक है, जब आप अपना मोबाइल खरीदने गए थे तो आपने MRP में क्या करा था? ऑलरेडी जो जिन ने प्रोडक्शन किया है, अपनी सर्विसेज दी हैं, उसके अंदर सबका वैल्यू एडिशन हो चुका था. अब आप उसको सेकेंड हैंड मोबाइल को सेल करने वाले हो, ठीक है, तो ना तो सेल ना ही परचेज, उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा. अगर होता है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. आ गई बात समझ में? सेकंड, कमीशन. कमीशन बहुत कॉमन टर्म है. कमीशन मतलब क्या होता है? जब कोई मतलब लाइक ब्रोकर होता है वो कमीशन लेता है. सुना होगा कमीशन वर्ड, क्वाइट कॉमन होता है ना. कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स will be included in national income. नेशनल इनकम में शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ NI. क्लियर? अब आपने बोला सर, पहले वाले पॉइंट में आपने बोला था कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम. मतलब कि जो हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स के अंदर, उसके अंदर हम कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, मतलब लाइक उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप बात करते हो कमीशन की, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज. अब सपोज करो मेरा बिजनेस है कि मैं जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ों के साथ डील करता हूँ. सेकंड हैंड कार्स का मार्केट देखा होगा, है ना. रायसर प्लाजा, गणपति प्लाजा में जाओगे तो सेकंड हैंड मोबाइल्स का मार्केट देखा होगा आपने. तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इनटू दैट दे आर परचेजिंग अ सेकंड हैंड कार और अ सेकंड हैंड फोन एंड दे आर रिपेयरिंग इट, मेकिंग इट little bit more better, and then they will going to sell again in the market. So that means what they are doing, they are adding the services. Okay, now they are providing the services. For those services they will going to charge the commission, and that will going to generate their income. Now here they have provided, what they have done, that they have started a business. So factor services याद है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर. तो उसने क्या किया? कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का कॉम्बिनेशन कर लिया. कैपिटल मतलब कहीं ना कहीं उसने अपना पैसा डाला है, कोई ना कोई छोटी मोटी मशीन्स ली होंगी काम करने के लिए. और एंटरप्रेन्योर कौन है? जो आइडिया लेकर आया है, जो प्रॉफिट अर्न करेगा. तो उस कारण से उसकी जो इनकम है वो क्या होगी? कमीशन के फॉर्म में उसकी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी. दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि सेकेंड हैंड चीज़ों की जब सेल या फिर परचेज होती है वो इंक्लूडेड नहीं होगी. समझ में आ रही है? लेकिन उसके ऊपर जो कमीशन है बहुत सिंपल समझता हूँ. सपोज करो आपने अपनी एक कार बेची 2 लाख रुपए की, ठीक है, XYZ शोरूम को, ठीक है. वो सेकेंड हैंड कार्स रखते हैं, और उस XYZ शोरूम के पास मैं गया एक सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए, और मेरे को आपकी वाली कार पसंद आ गई. तो अब वो बंदा क्या करेगा? वो मेरे को 2 लाख रुपए बेच देगा?
नहीं ना, वो क्या करेगा, उसको थोड़ा बहुत पेंट करवा लेगा, उसकी थोड़ी बहुत टचिंग करवा लेगा, उसके अंदर जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो कर देगा, और उसकी कॉस्ट अब क्या कर देगा, 2,50,000 रुपीज़ कोट करेगा और 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करेगा। तो 50,000 क्या है, उसकी इनकम है। क्यों इनकम है, क्योंकि उसने कोई सर्विसेज डाली है इसके अंदर, डाली है। तो ये इनकम तो क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए नेशनल इनकम में। आ गई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब एडजस्टमेंट आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या ऐड करें और क्या छोड़ दें। ठीक है, नाउ ओन अकाउंट मीन्स दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब सपोज करो एक प्रोडक्शन करने वाली कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ कार ले लेते हैं जैसे, सिंपल सा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। ठीक है, नाउ दे आर यूजिंग अ कार, सो दे आर अ प्रोड्यूसर ऑफ कार, and now they are using this car for their own self, for their own selves. Clear? So now in this they will going to add the value, but always they will going to add it. Now take an example, if they will going to utilize their own car for transportation of other equipments or other employees, or they used to travel for their business meets only, so in that will they will not going to add the value, but always they will going to add it. If they will not going to add it, then how the income will going to generate? समझ में नहीं आया, सिंपल समझाता हूँ। सपोज करो मेरे होंडा कार का शोरूम है, मैंने क्या किया, एक होंडा सिटी अपने काम, पर्सनल कामों के लिए निकाली, अपने बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, अब उस कार में भी क्या होगी, वैल्यू एडिशन तो होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उसको वैल्यू ऐड नहीं करेंगे उसके अंदर, जो जहाँ जहाँ पे वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमने उस कार को बनाने में सर्विसेज डाली हैं, तो उसकी कॉस्ट उतनी निकाल के हम उसके अंदर पैसा डालेंगे, इंकर्ड करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और मतलब लाइक वैल्यू एडिशन हमारा को करना ज़रूरी है। तो मतलब लाइक ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज है जो मैं ही प्रोड्यूस करना करता हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा कोई गुड एंड सर्विसेज which I am the one who is producing and I am the one who will going to use it, in that also I will going to add the value and that value will going to included in the national income. ऐसा नहीं है घर में अगर कुछ चीज़ हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं करेंगे कि यार अपनी तो है, क्या है इसमें पैसे प्रॉफिट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। ठीक है, वाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो न पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट। और हम लोग क्या करते हैं वैल्यू एडिशन के अंदर, हर एक गुड्स जो हमारे एंटरप्राइजेज, हमारे प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी विल बी इंक्लूडेड। क्लियर है। फोर्थ इसी से रिलेटेड है। नाउ अब एक और समझते हैं पॉइंट कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब फार्मर होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि हमारे जो फार्मर्स थे वो कैसी फार्मिंग करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी हम क्या करते हैं, कमर्शियल, लेकिन पहले क्या करते थे, सर्वाइवल बेस के लिए। सो इन दैट ऑल्सो वी आर, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर आर सेल्फ कंजम्पशन, सो विल नॉट गोइंग टू ऐड द वैल्यू, बट ऑब्वियस उसके अंदर हमने खून पसीना मेहनत करी है तो उसके अंदर वैल्यू तो ऐड होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है। सो दीज गुड्स, दोज गुड्स विच प्रोड्यूस बाय फॉर द मार्केट, लाइक सपोज करो इफ आई एम अ फार्मर आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग for the market to get a sale in the market, so if I will going to consume a part of that, then in that also I will going to add the value. So in this also for self consumption purpose भी अगर कुछ हो रहा है तो हम उसके अंदर भी क्या करेंगे, we will going to add the value. Clear. Fifth, value of intermediate goods. Value of intermediate goods is not included, not included in national income. So value of intermediate goods we will not going to add it. Why? Because it may be a possibility, its value is already added in, not a possibility but obvious the final good is the one who will going to include all the intermediate cost. Clear. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जिनके ऊपर हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट लग रही है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट तो कहाँ है, सारी इंक्लूडेड होकर किस में आ जाती है, फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी आ जाती है। तो मैं वापस से उसको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहीं पे भी वापस से इंक्लूड नहीं होती है बिकॉज उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर ऐड हो जाती है। लास्ट, नाउ टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन, production for self consumption will be included,
ध्यान देना, हर एक पॉइंट एक अलग आइडेंटिटी है। प्रोडक्शन जो हो रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर सर्विसेज कोई मैं खुद के लिए दे रहा हूँ, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, नॉट इंक्लूडेड। लाइक हाउसवाइफ सर्विसेज, मम्मी काम करती है, उनकी इनकम भी तो जनरेट होती होगी ना कुछ ना कुछ। अगर सपोज करो, उसके लिए मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, अगर सारे मम्मी का काम मेड रखे, मेड करे, तो मेड को हम सैलरी देंगे, उससे तो हम सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? वो सर्विसेज हमारे को दे रही है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं कर रही। वहीं पर अगर हमारी मम्मी वो काम करती है तो क्या हो जाता है, सेल्फ कंजम्पशन हो जाता है, और सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। क्योंकि अगर सपोज करो पापा मम्मी को वो पैसे दें तो घर में ही रह गए। पॉकेट मनी का भी एग्जांपल दिया था। अगर आपको आपकी मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं और दैट विल गोइंग टू बी ऐड इन नेशनल इनकम, सो देयर विल बी डबल काउंटिंग एरर। और डबल काउंटिंग एरर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वापस से एक ही चीज़ को दोबारा ऐड कर देना विल गोइंग टू क्रिएट एन डबल काउंटिंग एरर। क्लियर? सो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है वैल्यू एडेड मेथड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल कैलकुलेटिंग द क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स थ्रू वैल्यू एडिशन method. So go through it very nicely. Most probably soon I will going to give you the question on the basis, but before that I will make a video that how you will going to solve the numericals of value addition. So don't worry, go through the video very nicely, very carefully, prepare notes. If there any doubt comes up, give me a call or leave your query in the chat box. Till that time, take care. Thank you. Stay home, stay safe.